Dear student of class 10th, today we will study about sustainable management of natural resources. Living in harmony with nature is not new to us. अर्थात प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना यह हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है। वर्तमान समय में सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज़ ट्रेडिशन एंड कल्चर. It has been integrated with our long-lasting tradition and practices, customs, art and crafts, festival, food, beliefs, rituals and folklore. Ingrained within us is the philosophy that entire natural world be in harmony, which is reflected in famous phrase in Sanskrit, Vasudhaiva Kutumbakam, that the entire earth is our family. Entire earth is one family. The phrase is mentioned in Manupanishad, that is probably a part of the ancient Indian text अथर्ववेद. अथर्ववेद का एक पार्ट महाउपनिषद में ये कहा गया है, जो कि अथर्ववेद का एक पार्ट है. कक्षा 9 में जो है ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं ये आप सब जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें सॉइल, एयर और वाटर है. और ये भी हम लोग जान चुके हैं हाउ वेरियस कंपोनेंट आर साइकल्ड ओवर लैंड एंड ओवर अगेन इन नेचर. तो पिछले चैप्टर्स पे या पिछले क्लासेस में हम लोग इसके बारे में काफ़ी जान चुके हैं. एज यू नो दैट्स एवरीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, दैट मीन्स इन्वायरमेंट, टू मीट आवर नीड्स is a natural resource. Nature is a regular source of variety of substance required to meet our basic daily needs. जैसे अगर बात करें तो वुड जो है पेड़ों से मिलती है, जो हमारे फर्नीचर के बनाने में काम आती है. yarn obtained from cotton is used for weaving cloth. machine, tools and other household goods made of metals are nature's gift. The air, water, soil, plants, animals and microorganisms are all natural resources. Soil is the source of minerals. Plant including forest and animals provide us almost everything that we need in our daily life, directly or indirectly. The energy resources की जब बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेस पर हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है और दूसरे जो हैं नेचुरल ओरिजिन हैं. तो the enormous variety of natural resources on this earth provide everything for survival of all forms of life, including man. Even the prehistoric man led a life of hunter and procured everything what he needed for his survival from the forest. आदिकाल में जब व्यक्ति जंगल में यायावर जीवन व्यतीत करता था तो उस समय वह जंगली पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता था, उन्हीं को खा करके रहता था.
जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकता था, वृक्षों की छाल से और पत्तों से अपने शरीर को ढक करके काम कराता था। As you know that nature has been very kind to man since he came into existence. Early man used plants and animals for his sustenance. With the development of his mental faculties, man identified the natural gift available around him and learned to use them. जैसे जैसे मनुष्य मानसिक रूप से बुद्धिमान होता गया, उसने अपने चारों तरफ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अच्छी तरह उपयोग करें, इसको सीखा उसने। Although natural resources existed on earth even during prehistoric times, man had neither the tools for the technology to use them. With time he could learn to cultivate the land, grow crops by protecting different plants, and run the wind and water mills by using the wind and water energy. Similarly, coals and minerals, oil were present below the earth's surface for centuries, but he had no technology to utilize them. और धीरे धीरे जब मनुष्य ने उनका इस्तेमाल करना सीख लिया, जैसे जैसे वह अवेयर होता गया, awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomena in our society, and once this awareness rises, some action is usually taken. You must have heard about the Ganga Action Plan. This multi-crore project came about in 1985 because the quality of water of the Ganga was very poor. Coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicate contaminations by disease causing microorganism. आपके सामने जो फिगर देख पा रहे हैं तो इसमें फेकल कोलिफॉर्म लेवल्स है गंगोत्री टू डायमंड हार्बर। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है और डायमंड हार्बर जो है पश्चिम बंगाल में है। जिस समय ऋषिकेश से चलते हैं हम तो आप देखेंगे कि ऋषिकेश में जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वह बहुत कम है। 2007 में जो रेड लाइंस हैं ये 2007 को इंडिकेट कर रही हैं और जो ब्लू लाइंस हैं वो 2011 को इंडिकेट कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइंस हैं 2007 में ये पहले गंगोत्री में कम था, ऐसे ही रुड़की में कम था और कानपुर में भी कम था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत अधिक मात्रा में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि गंगा का जो रिवर का वाटर है वो एक बड़ा सोर्स है पोर्टेबल वाटर का, और ये पोर्टेबल वाटर जो हम लोग पी रहे हैं इसी में अनेक प्रकार के कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जब प्रवेश करेंगी तो बट नेचुरल है कि हमें स्टमक संबंधी तमाम प्रकार की डिसीज़ होती रहेंगी। नाउ सी द पोल्यूशन ऑफ द गंगा। सबसे पहले आप समझें कि पोल्यूशन होता क्या है। अनडिजायरेबल चेंजेस इन वाटर इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। नाउ द वाटर इज polluted by man-made resources. The Ganga run its course over 2,500 km from Gangotri in the Himalaya to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. तो गंगा जो है बह रही है। It is being turned into drain by more than 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal that pour their garbage and excreta into it. Largely untreated sewage is dumped into the Ganges every day.
In addition, think of the pollution caused by other human activities like bathing, washing of clothes, and immersion of ashes or unburned corpses, मतलब बिना जले हुए शव. And then industries contribute chemical effluents to the Ganga's pollution load, and the toxicity kill fish in the large section in the river. Namami Gange program is an integrated conservation mission approved by a flagship program by the Union government in June 2014. It was launched to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of River Ganga. The National Mission for Clean Ganga is the implementation wing set up in October 2016. तो जैसे ही आप कुछ मेजरेबल फैक्टर्स पर देखते हैं विच आर यूज टू क्वान्टिफाई pollution or the quality of the water that we use for various activities. कुछ जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इतने हार्मफुल हैं कि अगर वह उनकी छोटी सी भी थोड़ी भी क्वालिटी पानी में रह जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगी. वी रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू मेज़र देम. लेकिन जब पीएच ऑफ जो वाटर की पीएच है वो निश्चित है, उससे कम होगी अगर तो पानी एसिडिक हो जाएगा और अगर ज़्यादा होगी तो पानी बेसिक हो जाएगा. तो आप कभी भी एक पीएच पेपर आता है मार्केट में, उससे ले कर के आप पीएच चेक कर सकते हैं पानी का और देख सकते हैं. वी नीड नॉट फील powerless or overwhelmed by the scale of problem, because there are many things we can do to make a difference. You must have come across the 5 R's to save the environment. कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये 5 R क्या हैं. 5 R में पहला R है रिफ्यूज, सेकेंड इज रिड्यूस, थर्ड इज रीयूज और फोर्थ इज रीपर्पस एंड फिफ्थ वन इज़ द रिसाइकिल. तो हम इस पर बात करेंगे कि ये 5 R का मतलब क्या है. रिफ्यूज़ का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ अपने एनवायरनमेंट को गंदा नहीं होने देंगे. तो दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नीड. रिफ्यूज़ टू बाई प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट. से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग. इन सब के लिए हमको नो बोलना है. रिड्यूस का मतलब है कम करना. दिस मीन्स दैट यू यूज लेस. यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस. जिस कमरे से आप निकल रहे हैं वहाँ लाइट की और फैंस की ज़रूरत नहीं है, तो कमरे से बाहर निकलते ही जो लाइट और फैंस के स्विच हैं उन्हें ऑफ़ कर दें, जिससे कि आप बिजली बचा सकें. यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स. डू नॉट वेस्ट फूड. तो अगर ये आप ऐसा कर पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ों को आप बचा पाएंगे. जब चीज़ों को आप बचा पाएंगे तो मार्केट से कम खरीदेंगे, तो कम खरीदेंगे तो आप इकोनॉमिकली रीचर होते जाएंगे. इसके अलावा दूसरा है रीयूज. दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग because the process of recycling use some energy. In the reuse strategy, you simply use things again and again. Instead of throwing away used envelope, you can reserve it and use it again. The plastic bottles in which you buy various food items like jam or pickles can be used for storing things in the kitchen. और दूसरे कौन से तरीके रीयूज के हो सकते हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए. रीपर्पस. दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस. सपोज दैट एक क्रैक्ड क्रॉकरी है या कप है जिसके टूटे हुए हैंडल के साथ कप हैं, क्या इसको हम छोटे प्लांटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं?
can be used to grow small plants and as feeding vessels for birds. ऐसे पक्षी जो वातावरण में टहल रहे हैं, क्या उसमें हम उनके लिए पानी रख सकते हैं, उसमें दाना रख सकते हैं, इस प्रकार इनका पर्पस बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक तरीका है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब है जो वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हें रिसाइकिल करके दोबारा फिर वही वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं या उससे रिलेटेड कुछ बन सकता है। दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, glass and metal items and recycle these material to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass or metal. In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material that can be recycled is not dumped along with other waste. तो इसके लिए हमें जितने भी वेस्ट हैं, जो भी हमारे घर से कूड़ा करकट निकल रहा है, उसमें हमें प्लास्टिक अलग करनी है, मेटल्स अलग करना है, ग्लास अलग करना है और अलग अलग करके फिर उन्हें जंक डीलर को देना है। जंक डीलर से या तो पैसे में बेच दें, कुछ पैसे मिल सकते हैं, और नहीं पैसे मिल सकते हैं तो भी आप फ्री में दे दें जंक डीलर को। तो वो जंक डीलर उसको जाकर कुछ बड़ी फैक्ट्रियों को बेच देगा और फिर उसका भी काम चलेगा और हमें दोबारा से डिगिंग नहीं करनी पड़ेगी किसी मेटल्स की, दोबारा से उनकी सिंथेसाइजिंग नहीं होगी, ना ही दोबारा से उनका एक्सट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम ऐसा कुछ चाहे तो कर सकते हैं। अब समस्या ये पैदा हुई कि वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्स। हमें अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को मैनेज करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है जिसका जन्म हुआ है वह नष्ट जरूर होगी। तो चाहे कोई भी मैन मेड मटेरियल हो या नेचुरल मटेरियल हो, ये एक ना एक दिन समाप्त जरूर होंगे और जब समाप्त होंगे तो फिर आप इनको कहाँ से लाएंगे। इसलिए इनके मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ रही है हमको। Not just roads and building, but all the things we use or consume, food, cloth, books, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from resources on this earth. The only things we get from outside is energy which we receive from the sun. Even this energy is processed by living organisms and various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. तो फिर ये हमारे पास ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इन रिसोर्सेज को हमें केयरफुली यूज क्यों करना है। बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इन हेल्थ केयर। जैसे जैसे चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई है, तो लोग कम मर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कोई मरे। तो जब आबादी बढ़ेगी प्यारे बच्चों, तो बट नेचुरल है हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म perspective so that these will be last for generation to come and will not merely be exploited to the hilt for short term gains। तो जिस प्रकार से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़े समय बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन को ये फिर नहीं मिलेंगे। तो दिस मैनेजमेंट शुड आल्सो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources। जब ये रिसोर्सेज काफ़ी कम हो जाएंगे तो मुट्ठी भर जो पैसे वाले लोग हैं इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, गरीब आदमी को ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। दूसरा फैक्टर ये है टू कंसीडर while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used
For example, mining causes pollution because of the large amount of slag which is discarded for every ton of metal excreted. Hence, sustainable natural resource management demand that we plan for safe disposal of these waste too. तो जब ये वेस्ट निकलेंगे, जो वर्ज्य पदार्थ निकल रहे हैं, इनको अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो ये पॉल्यूशन फैलाएंगे, और पॉल्यूशन फैलाने पर ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदे करेंगे। गंदगी से अनेक प्रकार की डिसीज होंगी। डिसीज होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, और जब पैसे खर्च होंगे तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझेंगी। तो द प्रेजेंट डे ग्लोबल कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर द रिसेंट ओरिजिन एज compared to the long tradition and culture of nature conservation in our country. Principle of conservation and sustainable management were well established in the prehistoric India. Our ancient literature is full of such examples where values and sensitivity of human toward nature was glorified and the principle of sustainability was established at it बेस्ड। तो प्यारे बच्चों, ये समझ लो, हमारे देश के अंदर नेचर को प्रिजर्व करने के बहुत तरीके थे। जैसे बरगद और पीपल के कोई पेड़ लगाता नहीं है, ये अपने आप जो है, जो पक्षी बीट करते हैं, उन बीट से प्रोसेस होकर के बीज सीड निकलते हैं, और उनसे कहीं पर भी पीपल और बरगद के पेड़, नीम के पेड़ उगाते हैं। तो इसलिए कह दिया गया कि बरगद और पीपल की हमारे यहाँ पूजा होने लगी, इन्हें देवता का स्वरूप मान लिया गया। ऐसे ही तुलसी की हमारे यहाँ पूजा होने लगी, इसे देवी का स्वरूप मान लिया गया। अर्थात हमने इनको देवी देवता का स्वरूप इसलिए दिया जिससे हम इनकी रक्षा कर सकें, इनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर सकें। हमने पानी को जल देवता से जोड़ दिया कि हमें देवता को गंदा नहीं करना है। हमने सूर्य को देवता कहा, ऐसे ही भूमि को हमने माता कहा। इस प्रकार से हमने इन सभी जो 5 महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि बना शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर। क्षिति मतलब कि भूमि, जल तो आप जानते ही हैं, गगन मतलब आकाश तत्व, क्षिति जल पावक आग, गगन समीरा मतलब वायु। तो इन सब चीज़ों से, इन 5 चीज़ों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। इन 5 महाभूतों से हमारे शरीर में जल तत्व भी है। हमारे शरीर में जहाँ पर भी हवा है वो वायु तत्व है। हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये हमारे शरीर का अग्नि तत्व है। इसके अलावा हमारे शरीर में अनेक प्रकार के मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं तो ये हमारा भूमि तत्व है। तो इन सभी तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो इंडियन टेक्स्ट एज उपनिषद एंड स्मृति कंटेन मैनी डिस्क्रिप्शन ऑन द यूजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड हाईलाइट सस्टेनेबिलिटी एज एन इम्प्लिसिट थीम ऑन वन हाइम फ्रॉम द अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसकी अनेक प्रकार की गीत श्लोक मिल जाते हैं। लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन द बुक अथर्ववेद, द संस्कृत टेक्स्ट विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन रिटन बाय देवी चंद इन 1997। तो इसको अंग्रेजी में इस श्लोक का जो ट्रांसलेशन किया गया है, श्लोक क्या है, हीरायस्त पर्वता हिमवंतोरणंति पृथ्वी स्वयंस्तु बभ्रन् कृष्णं रोहिणीं विवस्प्रं ध्रुवं भूमि पृथ्वीमिन्द्राकृतम् अजितो हातो अक्षोदयस्थं पृथ्वीमहम्। ए अर्थ,
प्रेजेंट बाय द हिल्स, ये पृथ्वी जो है ढकी हुई है। हिमवंतोरयम मतलब कि स्नो कैप्ड माउंटेन से, फॉरेस्ट से। ओ न्यूमरस कलर्ड फर्न एंड प्रोटेक्टेड अर्थ, ऑन दिस अर्थ आई स्टैंड अंडरफीटेड अनस्टैंड अनहर्ट। दूसरा है यथ भूमि बिखनमी क्षिप्रन तादपि रोहतो माते मर्म विमृगवरी मेति हृदयन पिपम। आई डिग आउट, हे माता जब मैं आपको खोदता हूँ, मे दैट हैव क्विक रिजनरेशन अगेन, may we not damage the vital habitat and heart. So during the Vedic period, both productive as well as protective aspect of forest vegetation emphasized. Agriculture emerged as a dominant economic activity during the later Vedic period. This was a time when the concept of cultural landscape such as sacred forest and groves, sacred corridors, and a variety of arsenoforestry practices were evolved that continue to the post-Vedic period. Besides, a wide range of ethnoforestry practices were infused with the tradition, customs, and rituals, and followed by a means for protection of nature and natural resources. इस प्रकार से हम अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को बचाया है और उसकी पूजा की। तो इस प्रकार से हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है और इसकी पूजा करते हुए हमें इसके साथ रहना है।